Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. My name is Avinash Agarwal and in this video I'll be discussing with you a question that was asked in GS1 Civil Services Mains Examination 2024. So the question is, underline the changes in the field of society and economy from the Rig Vedic to the later Vedic period. So this was a 10 marker question. हमें इसे 150 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है. Essentially we have to compare the Rig Vedic period with the later Vedic period in the arena of society, in the arena of economy. What I am going to do over here is that I am going to discuss a detailed fodder for this particular question. I want you to attempt this question and send it to us for a free evaluation through the Civil's Right app, and this note will also be available through the app. So let us start the discussion. अर्ली वैदिक इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज बेसिकली एन इकोनॉमी जहां पर पैस्टोरलिज्म वाज द नेम ऑफ द गेम. कैटल रेयरिंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैटल काउ को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ माना जाता था. व्हेन इट केम टू एनिमल रेयरिंग, सो वेदर इट वाज कैटल, वेदर इट वाज शीप, वेदर इट वाज गोट, वेदर इट वाज हॉर्सेस, काफी सारे एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट करा गया था for the purpose of milk, meat and hide. This is very very important. इसके कई सारे हमारे पास evidences हैं from the reference to cow within the Rigvedic literature. इसका मतलब ये नहीं है कि pastoralism है मतलब agriculture बिल्कुल भी नहीं है. Agriculture का भी evidence है, but it is only to a limited extent. For example, barley was one of the crops जिसे cultivate करा जाता था. ये प्रकार की चीज को आपको प्रीलिम्स में अंदर घुमा के बड़े आराम से पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर ऋग्वेदिक टाइम में था या नहीं था, तो आपको मालूम होना चाहिए था. हंटिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, वीविंग, चैरियट मेकिंग, मेटल स्मेल्टिंग, ये सारे एक्टिविटीज जो है ऋग्वेदिक लोगों को करने आते थे. बार्टर वॉज द प्राइमरी मोड ऑफ एक्सचेंज. वो टाइम तक जो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी है या जो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं हुआ था. These are some of the important points regarding the early Vedic economy जो कि आपको मालूम होने ही चाहिए to be able to answer this question. There were significant changes in the economy in the later Vedic phase, right? So there is a shift towards agriculture as the primary economic activity, right? So first pastoralism was the primary economic activity. Now agriculture is becoming the primary economic activity. We are having new agricultural tools, new techniques. We are having a variety of plants that we are growing. We are having an increase in the quantity of food that we are able to grow, right? जो इंद्र भगवान थे, जो इंद्र भगवान है, he became the lord of the plow. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें माना जाता था, right? Whether it was wheat, rice, pulses, lentils, millets, sugar cane, हर प्रकार की चीज जो है हम वो टाइम से ग्रो करने लग रहे हैं. इकोनॉमी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो है आयरन के यूटिलाइजेशन से काफी ज्यादा आगे बढ़ी. आयरन इज अ metal which you are able to use for clearing forest, which you are able to use for let us say plowing a soil which was not very easily maneuverable, right? सो जंगल को क्लियर करने के अंदर, स्पेशली डेंस जंगल को क्लियर करने के अंदर इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आयरन वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट? सो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड काफी सारा फॉरेस्ट लैंड को जो है हमने कल्टिवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट करा है यूजिंग आयरन टूल्स. When we are speaking about the economy, so given the fact that now we are having sufficient food production, right? Now that we are having people who are settling down, right? So naturally people are feeling secure, people are feeling stable, और ऐसी परिस्थिति के अंदर population increase होना लाजमी है, right? So Vedic people, they start understanding and exploiting their knowledge about seasons, about manuring, about irrigation towards their advantage. Population is increasing, there is enough food production that is happening, so everybody don't need to be involved in food production. People can start specializing in a variety of trade, in a variety of crafts. So you see that with a variety of non-agricultural occupations will come up, and with those non-agricultural populations coming up simultaneously, we will see urbanization flourish in India. So you will have settlements such as Hastinapur and Kaushambi. So urban economy will start getting created, non-agricultural economy will start getting created, and
in this particular time period we are having a significant amount or significant utilization of money as a mode of exchange. So when you are going to compare, right, you have to keep these basic points in mind. We encourage you to do writing practice on your own. We don't encourage you to copy answers from here, there, anywhere. Think on your own, learn on your own, write on your own, because in your exam you are going to be on your own. अर्ली वैदिक सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, सो इकोनॉमी का जो कंपैरिजन है वो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. दीज आर द बेयर मिनिमम पॉइंट्स दैट यू शुड नो. अर्ली वैदिक सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, सो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. फैमिली वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द सोसाइटी. मैरिज इज मोनोगैमस, राइट. वहां पर जो प्रधान थे, जो चीफ्स थे, जो सरपंच वगैरह टाइप के लोग थे, वो लोग ही पॉलीगैमी करा करते थे, इफ एट ऑल, राइट. women, they were being married after reaching maturity. Now इस पर्टिकुलर दो लाइन के अंदर आपको दिखाई देता है कि जो women का जो औहदा है, जो women की जो प्रेस्टीज है, वो काफी अच्छी है, इन द सेंस दैट देयर इज ओनली मोनोगैमी विच इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ मैरिज. सो यू नो, जो आज के दिन कोई भी लेडी एक्सपेक्ट करेगी मोनोगैमी, वो चीज वो टाइम पे होने लग रही थी. आज के दिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि व्हेन यू रीच अडल्टहुड देन यू शुड गेट मैरिड, तो वो टाइम पे भी वही हो रहा था इन द अर्ली वैदिक पीरियड, मैरिज आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी, राइट. उसके अलावा you were basically a part of a clan, your family was a part of a clan, society was largely egalitarian, कोई casteism as such बहुत ज्यादा डेवलप वो टाइम पे नहीं हुआ था. This is a very important point to note. This is a very important point of distinction. This one as well as this one, right? Individuals अपने प्रोफेशंस खुद चुन सकते थे, राइट. सो वहां पर ऐसा नहीं था कि बाय बर्थ जो है मेरे माथे पे लिख दिया गया कि मेरी ऑक्यूपेशन क्या होगी. वैदिक पीपल के अंदर डिस्टिंक्शन था दैट नॉन वैदिक इंडिजीनियस पीपल वर डिफरेंट फ्रॉम वैदिक पीपल, राइट. कॉम्प्लेक्शन का फर्क था, भाषा का फर्क था. तो ऐसा नहीं था सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, या सोसाइटी के अंदर जो है वर्ग भेद बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कास्टिज्म वाज नॉट देयर, right. So there is definitely mention of Arya Varna and Dasa Varna. Arya Varna and Dasa Varna के अंदर आपको समझ में आ रहा है कि Dasa is something which is referring to somebody who is being, let us say, treated like a slave, somebody who is, let us say, in an inferior position, so from a societal point of view, right. So inequalities was there within tribes, inequalities was there amongst, let us say, the so-called Aryas and the so-called Dasyus, right. There were three sections. There were warriors, priests and ordinary people, right. And the Sudra category, it emerged towards the end of the Rigvedic period. It is exactly these Sudras who we will start treating almost like untouchables, not like untouchables, almost like untouchables, right. We will start exploiting them in the later Vedic period in a very, very bad manner, right. Like I am trying to mention to you that Vedic society was not sharply divided. Yes, there were divisions, like I mentioned, Aryans and Dasyus, warriors, priests and ordinary people. Yes, there is distinction, but you don't see very sharp distinction. You see that women are having respectable positions. You are seeing that marriages are taking place at the right ages and so on. Now, when you come to the later Vedic phase, you see that joint family structure is coming up. There is evidence from archaeological sites such as Atranji Kheda as well as Ahi Chatra, right. सो कम्युनल फीडिंग अरेंजमेंट जो हम साथ साथ है टाइप के मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, वो टाइप का सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है. इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा जो है वो डेवलप हो जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोत्रा? गोत्रा का मतलब था कि काउ पेन, जहां पर हम लोग सब अपनी गाय बांधते हैं, राइट, दैट इज काउ पेन. तो गोत्र का मतलब ये होता है कि गोत्र एक्सोगैमी होने लग गई. गोत्र एक्सोगैमी मतलब कि जो एक ही वंशज से निकल कर आ रहे लोग हैं, वो लोग के आपस में शादी नहीं होगी, गोत्र के बाहर शादी करवाई जाएगी. तो गोत्र एक्सोगैमी को जो है हमने पालन करना शुरू कर दिया. इसी गोत्र एक्सोगैमी को जो है अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में लेकर चला जाऊं, तो आज के दिन जो बीच में होने लग गया था, मर्डर वर्डर होने लग गए थे दूल्हा दुल्हन के, क्योंकि उन्होंने गोत्र के अंदर शादी कर ली थी या समथिंग लाइक दैट, वो भी सारी चीजें काफी यहाँ पर से मतलब जो है आप थोड़ा सा ट्रेस कर सकते हैं. आज भी इंडिया के अंदर गोत्र को माना जाता है. मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि गोत्र का जो ओरिजिन है वो काउ पेन के आइडिया से था कि सब लोग काउ एक साथ में जो बांधते हैं, तो वो एक ही प्रकार के वंशज से निकल कर आ रहे हैं. ये चीज हमें समझनी है, राइट. पॉलीगैमी वॉज स्टिल प्रैक्टिस, मोनोगैमी वॉज द प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज. विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आने लग गए, नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आने लग गए, राइट. पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मीटिंग्स कम होने लग गई, एजुकेशन के ऊपर कम फोकस होने लग गया, अर्ली मैरिजेस करवा दी जाने लग गई,
राइट। सो काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस विमेन के ऊपर आने लग गए ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज के अंदर। आप देखेंगे कि देयर इज ओवरऑल डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ वुमन इन द सोसाइटी। अगर आप वर्ण सिस्टम की बात करेंगे, राइट, तो शार्प डिस्टिंक्शन, शार्प डिवीजन दिखाई देने को मिलता है बिटवीन ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। ऑन द वन हैंड आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण्स क्या करते हैं, क्षत्रिय क्या करते हैं, वैश्य क्या करते हैं, एज वेल एज शूद्र क्या करते हैं, राइट। उसके अलावा अराउंड दिस टाइम we start developing the concept of आश्रमा और stages of life। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, ये सारे आश्रमों के बारे में जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर आपको मेंशन करने को मिलता है, एज वेल एज संन्यास, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्णा एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ आश्रम, कुल मिला के वर्णाश्रम धर्म का जो स्थापना है, वर्णाश्रम धर्म की जो जो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी है, दैट इज हैपनिंग इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, एक समरी भी बनाकर दे दी है प्यारी सी, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना चाहिए फ्रॉम द ऐप, एंड आंसर लिखकर आपको जो है बहुत सारे आंसर्स लिखकर एक साथ में इकट्ठा करके आपको हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए भेजना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा यहाँ पर है, मेरी टीम की तरफ से मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को ये है कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विद दिस विल ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।